Okay, so दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दे रहे हैं। Okay. हाँ। Uh, लेट्स से तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग अभी तक हम लोग देखे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इन एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग क्या देखे कि हाउ द एटम्स आर अरेंज्ड, है ना? हाउ द how the electrons and protons and neutrons are arranged in an atom, ठीक है? How do you like how do we talk about the address of each and every electron, how each and every electron is located differently, ठीक है? हर each and every electron is unique, ठीक है? We can define each and every electron by their quantum numbers, ठीक है? We talked about the protons and neutrons, how they get converted from one another, ठीक है? The meson theory, mass defect, binding energy. Okay, we also talked about earlier. We talked about the uh, electromagnetic radiations that are released when electron jumps from one shell to another, or from one subshell to another. When an electron jumps from one shell to another shell, then a hydrogen spectrum is produced. When electron jumps from a subshell to another subshell, then the fine spectrum of hydrogen is produced. That is the splitting of the hydrogen spectrum in presence of electric or magnetic fields, that is Zeeman and Stark effect, is prominent. And we get to see the fine spectrum, which indicates that inside every shell there are several other components such as subshells and orbitals. Okay, we also talked about orbitals, the shape of orbitals. We talked about the nodes, nodal planes of each and every orbital. What is orbital? We also talked about the graphs. Okay, so we also talked about the graphs, graphical representation of the probability density with respect to radius. Okay, so we talked about that. We also talked about the radial probability distribution. Okay, which is basically the radial component of the psi wave function with respect to radius and how it is plotted and all. Okay, so we also talked about the graphs and all. We talked about the angular momentum, how it can be calculated. We talked about the magnetic moment, how it can be calculated from the magnetic quantum number. We also talked about the spin multiplicity. We talked about Aufbau's principle of how the electrons are filled respectively, successively as we go along the periodic table. ठीक है? So that's almost it in atomic structure. In chemical bonding, what we will talk about is how atoms are interacting with each other. This is the most important thing. ठीक है? So chemical bonding deals with how atoms interact with one another. यहाँ तक clear है? यस। हाँ सर। Okay. So chemical bonding basically deals with how atoms interact each other. ठीक है? How atoms interact with each other. Now, from a small number of elements, there are millions of compounds.
From a small number of elements there are millions of compounds known. ठीक है, तो हम लोग के पास कितने एलिमेंट्स हैं? वी ओनली नो अबाउट 118 एलिमेंट्स, आउट ऑफ विच मेनी ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव वाला पार्ट पूरा हटा के approx 85 to 90 elements are there which are naturally occurring, and from 80 to 90 elements you are getting millions of compounds. So that is why chemical bonding is very important to understand. ठीक है, because today in modern chemistry we do not talk about elements, we talk only about compounds and molecules. ठीक है, we talk about molecules, how molecules are formed, what are the molecules that can be formed. ठीक है, whenever you have a, let's say, whenever you have a medicine, let's say, so medicines are also chemical compounds. So let's say after a certain point of time the medicine is no longer useful because the body is no longer adapting to it, so you have to make a different medicine with the same use, right? The medicine should have the same use, that it should affect the same pathogen or microorganism, but it should be chemically different so that the body cannot understand that it is the same thing. Okay, so you have to make a different compound. Okay, so you have to come up with new and new compounds from time to time. ठीक है, जितने कंपाउंड्स हैं, मोर एंड मोर कंपाउंड्स आर बीइंग फॉर्म्ड, नए नए कंपाउंड्स बन रहे हैं। ठीक है, सो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, from those 80 to 90 elements. Fine. Okay. So molecules, what are molecules? बताया था चैप्टर 1 में। Molecules are basically electrically neutral. They are essentially electrically neutral aggregation of atoms held together electrically neutral aggregation of atoms held together. ठीक है, electrically neutral aggregation held together by some forces, by some forces. ठीक है, depending on what type of force it is, the type of there are different types of molecules। ठीक है, जिसमें हम लोग आते हैं बाद में। ठीक है, okay, so these forces, they keep the molecule stable, है ना? Different types of forces are there, we'll come to that। इसके बाद हम लोग बात करेंगे very important concept, that is valency। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी क्या होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में था थोड़ा थोड़ा। इट्स बेसिकली, डेफिनेशन अगर बताओगे व्हाट इज वैलेंसी, अगर कोई पूछेगा, इट इज द combining capacity of combining capacity of atom, combining capacity of an atom। ठीक है, इज द combining capacity of an atom। combining capacity of का मतलब क्या होता है? व्हाट इज combining capacity, है ना? सो combining capacity, व्हाट इज combining capacity मतलब कितना एटम्स के साथ या मॉलिक्यूल के साथ वो एटम कंबाइन कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। सो इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और क्लोराइड एटम्स with which with which an atom binds। so for example, अगर कोई एटम, अगर कोई मॉलिक्यूल है, लेट्स से CH4 मीथेन, तो यहाँ पे कार्बन क्या कर रहा है? कार्बन इज बाइंडिंग विथ 4 हाइड्रोजन एटम्स, है ना?
सो द वैलेंसी ऑफ कार्बन यहाँ पे कितना है? वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम लोग CH4 की जगह पे CCl4 भी यूज कर सकते हैं. सिमिलरली इफ वी यूज समथिंग लाइक if you use something like एक सेकेंड. ओमा, माँ, এত জোরে কথা বলছো তোমরা, বাপরে বাপরে, চিল্লি চিল্লি. ओके, सो कहाँ पे थे हम लोग? CH4 या फिर CCl4. ठीक है, तो बेसिकली किसी भी एटम के साथ कितना हाइड्रोजन या फिर कितना क्लोराइड बाइंड कर रहा है या उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी. फॉर एग्जांपल SCl6. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग वैलेंसी ऑफ सल्फर क्या बोलेंगे? 6. ठीक है, वैलेंसी ऑफ सल्फर इज 6. हम लोग क्यों हाइड्रोजन और क्लोरीन ही यूज करते हैं? बिकॉज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन is considered as 1. Valency of hydrogen and chlorine is considered as 1. ठीक है, सो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होगा? तुम लोगों को पता है H2O होता है, तो एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी हो जाएगा 2. मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होगा? जस्ट फॉर एन एग्जांपल, MgCl2 होता है, तो यहाँ पे वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2. ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? एनीबडी? सुनाई दे रहा है ना? Yes, sir. किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, No, sir. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, पहला, लेट्स से वैलेंसी कैन बी इन फ्रैक्शंस. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. वैलेंसी कैन बी इन फ्रैक्शंस. एंड नंबर 2, one element can have more than one valency, or we can write it as more than one valency, or we can write it as multiple valencies. ठीक है, multiple valencies. एग्जाम्पल, नाइट्रोजन का अगर ले लो, नाइट्रोजन NH3 बनाता है विच इज अमोनिया, N2H4 बनाता है, N3H बनाता है. ठीक है, इन तीनों में नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या क्या होगा? NH3 में वैलेंसी इज 3, दूसरे वाले में उसका वैलेंसी है 2, तीसरे वाले में इसका वैलेंसी है 1/3 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, सो वैलेंसी कैन बी इन फ्रैक्शंस, और एक एलिमेंट का एक से ज्यादा वैलेंसी भी हो सकता है. ठीक है, सो व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी? मॉडर्न डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed by an atom in a molecule. ठीक है, it is the number of bonds formed by an atom in a molecule is the valency of that particular atom in that molecule. ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? किसी को नहीं है? नेक्स्ट,
topic is causes of chemical combination. Causes of chemical combination. ठीक है, तो atoms combine क्यों करते हैं? Okay, as we know, atoms are pretty stable by themselves, है ना? So why do atoms need to combine? What is the necessity for atoms to combine to form molecules? ठीक है. So what are the causes for chemical combination? पहला, decrease in energy. Decrease in energy. ठीक है. Obviously atoms try to attain minimum amount of energy, लेकिन when atoms combine to form molecules, तो जब दो एटम या फिर दो से ज़्यादा एटम मॉलिक्यूल बनते हैं, उस मॉलिक्यूल में हर एक एटम का इंडिविजुअल एनर्जी और कम हो जाता है. ठीक है. सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट important रीजंस व्हाई atoms try to form molecules, that is decrease in energy. ठीक है. So there is a fundamental truth in chemistry, fundamental truth in chemistry जो हर जगह applicable है, that is all natural systems, all natural systems tend to lose potential energy, tend to lose potential energy and become more stable, and become more stable. ठीक है. सो ईच एंड एवरी नेचुरल सिस्टम. ठीक है, तुम सिस्टम किसी भी चीज को पकड़ सकते हो. यू कैन टेक द होल यूनिवर्स एज अ सिस्टम, यू कैन टेक अर्थ एज अ सिस्टम, यू कैन टेक योर एनवायरमेंट एज अ सिस्टम, यू कैन टेक योर हाउस एज अ सिस्टम. ठीक है, ईच एंड एवरी सिस्टम, each and every natural system tries to lose potential energy and become more and more stable. यहाँ तक क्लियर है? हेलो, सुनाई दे रहा है? Yeah, true. ओके, Yes, sir. एक सेकेंड. হ্যালো, শোন না, বলছি তো ক্লাস করবি তুই এখন একটা, সেটা আছে. আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, হুম, ঠিক আছে. ओके. सो all natural systems tend to lose potential energy and become more stable. हो गया. इसके बाद, इसके बाद, सो bonded bonded atoms have lower energy. Bonded atoms have lower energy than bonded atoms have lower energy than unbounded unbounded atoms. ठीक है. बॉन्डेड एटम्स मतलब जो भी एटम्स बॉन्ड करके मॉलिक्यूल बनाता है, उसका एनर्जी हमेशा कम होता है कंपेयर टू द अनबॉन्डेड एटम्स. ठीक है. हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? ठीक है, इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं? व्हेन टू एटम्स कम टुगेदर, जब भी, whenever there are two atoms coming together. ठीक है. So when two atoms come together, there are three interactions. Three interactions take place. क्या क्या interaction होता है? There are three interactions that take place. Number one is electron repulsion between the two atoms. Number two is the proton repulsion between the two atoms. Number three, it is the electron proton attraction
between the two atoms. So repulsion always increases energy, attraction always decreases energy. ठीक है. So इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जब हो रहा है तो उससे इंक्रीज हो रहा है एनर्जी. प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन हो रहा है तो उससे भी एनर्जी इंक्रीज हो रहा है. लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उससे क्या हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. अगर इन तीनों का जो नेट रिजल्टेंट या फिर वी कैन से नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन अगर हुआ, देन टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. यहाँ पे सिस्टम क्या है, just the two atoms coming together to form a molecule. Then total potential energy of the system decreases and formation of bond takes place. Formation of bond takes place. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. श्योर. श्रेयस, अनुराग. Yes, sir, no doubt. No, sir. ठीक है. ओके. ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड. पहला हो गया डिक्रीज इन एनर्जी. दूसरा है, ठीक है, वाई केमिकल कॉम्बिनेशन ऑकर्स का दूसरा जो लॉजिक है, इट वाज गिवन बाय अ फेमस chemist. His name is Lewis. So we know him as the Lewis octet rule. Octet rule of Lewis. ठीक है. So the octet rule of Lewis. Lewis ने क्या बताया कि we see that the noble gases, they have no chemical activity. है ना? They have no chemical activity. They do not react, do not form any compounds, etc. etc. Why? Because they have, all of them have filled outermost shells. So their outermost shells are completely filled up. है ना? So their outermost shells are completely filled. That is why they have no chemical activity. ठीक है? Except helium, all others have maximum of 8 electrons in outermost shell. है ना? In outermost shell. Because outermost shell is always ns2np6. है ना? तो इसीलिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, एक्सेप्ट हीलियम जिसमें कि 2 होता है बिकॉज इट्स ओनली ns2. इट डज नॉट हैव एनी p सब शेल. है ना? सो देयर इज 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम in each and every noble gas out in the outermost shell. है ना? So what was the conclusion? The conclusion was S2p6 या फिर ns2np6. Let's write it as ns2np6. configuration configuration in outermost shell
has minimum energy and maximum stability. ठीक है, दिस वाज कंक्लूडेड फ्रॉम द नोबल गैस. ठीक है, कि सबसे कम एनर्जी और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी रहता है नोबल गैस में. दैट इज़ वाई दे आर नॉट शोइंग एनी एक्टिविटी केमिकल रिएक्शंस, है ना. सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट NH2 NP6 जो कॉन्फ़िगरेशन जो नोबल गैस का है, दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. So when atoms are trying to form bonds, they are always trying to achieve this NH2 NP6 configuration, है ना. So atoms, बोलो, कुछ डाउट है? No, sir, no, sir. Okay. Atoms forming bonds, forming chemical bonds, let's say, try to achieve NH2 NP6 configuration. ठीक है. They always try to achieve NH2 NP6 configuration or the noble gas configuration, that is either 2 or 8 electrons in outermost shell. यहाँ पे 2 is only for n equals to 1. ठीक है, n equals to from n equals to 2 it is 8 electrons. ठीक है. यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है? नहीं सर. सबका क्लियर है? निशान, प्रिंस, No, शिव. sir, no doubt. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज Lewis symbol of elements. ये लेविस का ऑक्टेट रूल के अंदर ही आता है. ठीक है. एलिमेंट्स. सो हाउ द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड. ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेविस. सो अकॉर्डिंग टू लेविस क्या था कि एटम्स ऑलवेज ट्राई टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, या फिर NH2 NP6 वाला कॉन्फ़िगरेशन. सो अकॉर्डिंग टू लेविस हम लोग ये भी बोल सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग mainly depends on electrons in the outermost shell. ठीक है, outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन है उसी पे डिपेंड करता है सब कुछ अकॉर्डिंग टू लेविस, है ना. outermost shell या फिर outermost एनर्जी लेवल, है ना. these electrons are called, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. Electrons present in the outermost orbit, outermost shell are known as valence electrons. ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर है that is your valence electron. For example सोडियम का अगर बात करें it is 281, है ना. So the valence electrons is number, it has one valence electron, है ना. अगर हम लोग सल्फर का बात करें सल्फर इज 286. So what is the number of valence electron? 6 is the number of valence electron. यहाँ तक क्लियर है? है ना. हाँ सर. हाँ अब सर. अब
ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज डॉट्स अराउंड द सिंबल। तो पहले हम लोग सिंबल लिखते हैं, सपोज करो कि सोडियम लिखें। अब सोडियम के साथ हम लोग एक डॉट देंगे बिकॉज इट हैज गॉट ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सपोज करो हम लोग लिख रहे हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैज ऑल्सो वन इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो H वन डॉट। सपोज करो हम लोग लिख रहे हैं कार्बन। कार्बन इज 2 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, वी राइट इट लाइक दिस। ठीक है। सपोज करो हम लोग ऑक्सीजन लिख रहे हैं। ऑक्सीजन इज 2 6, इट हैज गॉट 6 इलेक्ट्रॉन्स, so 6 electrons will be represented like this. Suppose करो हम लोग क्लोरीन का लिख रहे हैं, so chlorine is 2 7, so it will look like this, 7 इलेक्ट्रॉन। जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग इसके अराउंड लिखते हैं। सपोज करो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हैज गॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स, so 2 electrons like sulfur, let's say sulfur has got 6 electrons, so like this। ठीक है। सपोज करो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज 2 5, so 5 electrons, so it will have like this। ठीक है। 5 dots, 5। So you have to basically write the symbol and the number of valence electrons are represented as dots around it। Clear है? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे तुम लोग का एक होमवर्क है, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक तुमको लिविस सिंबल ड्रॉ करना है हर एक का। ठीक है, लिविस सिंबल्स। ठीक है, ये कर लेना। ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंसी। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंसी एक्सप्लेन करते वक्त देयर वाज अनदर केमिस्ट हु केम विथ लुइस। ठीक है, हिज नेम वाज कॉसल, सो वी आल्सो कॉल इट एज कॉसल लिविस थ्योरी। कॉसल लिविस थ्योरी। कॉसल लिविस थ्योरी। ठीक है। सो कॉसल लिविस थ्योरी क्या बताता है? पहला, वैलेंसी ऑफ एटम depends on number of electrons in outermost shell। outermost shell या फिर ऑर्बिट लिख सकते हो, ऑर्बिट और शेल। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस आर स्टेबल। ये तुम लोग को ऑलरेडी पता है। ठीक है, दैट इज एक्सेप्ट हीलियम 8 electrons in outermost orbit। ठीक है। noble gases, they are chemically inert, chemically inert and form no compounds, form no compounds। ठीक है।
अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग को पता है कि नोबल गैस जो है, उन लोग को पहले हम लोग इनर्ट गैस बोलते थे, बाद में नेम चेंज होके इनर्ट गैस से नोबल गैस हुआ है। क्या तुम लोग को ये पता था? हाँ सर, पता था। किसको पता था? नाम बता। सर ना, आप सोचो किसको पता होगा। हाँ ठीक है, अच्छा। तो चेंज क्यों हुआ नाम? इनर्ट नहीं गैस। मतलब पहले बोला जाता था, ये पता था सर को। हाँ, पहले बोला जाता था इनर्ट गैस, लेकिन बाद में पहले हर जगह पे इनर्ट गैस लिखा होता था, बट अभी बुक्स में या फिर हर जगह पे नोबल गैस लिखा जाता है इनर्ट गैस के जगह पे। क्यों? हाँ। कोई तो रीजन होगा। क्यों तो नहीं पता था, बस पता था। हाँ, क्यों वाला चीज नहीं पता था। कोई तो रीजन होगा, क्योंकि रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि सम ऑफ द इनर्ट गैसेस, जैसे कि क्रिप्टन हो गया या फिर जेनन हो गया, दे आर फॉर्मिंग हाँ। कंपाउंड्स। ठीक है, दे फॉर्म कंपाउंड्स। अरे। सो इसीलिए हम लोग अब उसको इनर्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम लोग इनर्ट बोलेंगे तो इनर्ट का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई वी चेंज्ड इट फ्रॉम इनर्ट टू नोबल गैसेस, की inert, ठीक most of them are inert, they are inert in normal conditions, but they है। also form some compounds। ठीक है, xenon, तो krypton। xenon जो है, xenon ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो सर फ्लोराइड। जनरल उन लोग तो रेडियो एक्टिव हो गए ना। xenon रेडियो एक्टिव कैसे हो गया? रेडॉन इज रेडियो एक्टिव। हाँ वही रेडॉन जो हो गया वो रेडियो एक्टिव हो गया है ना। रेडॉन, तो xenon कंपाउंड तो बनाएगा रेडियो ही। एक्टिव नहीं है ना, xenon तो पाया जाता है। हाँ। ठीक है, सो सिंस लेटर ऑन, लाइक हम लोग देखे कि some of the noble gases they are forming compounds, that is why we change the name from दे आर inert to। कॉल्ड नोबल गैस। ठीक है। नोबल। हाँ ठीक है। थर्ड पॉइंट, atoms with less than 8 electrons in outermost orbit, less than 8 electron in outermost orbit, tend to achieve tend to achieve 8 electrons, and hence are chemically active। hence are chemically active, simple सा लॉजिक है। ठीक है, that is why they try to form bonds। Number 4, there are two ways to achieve noble gas configuration। noble gas configuration। ठीक है, पहला, by losing or accepting electrons। by losing or accepting electrons। Number 2, by sharing of electrons। ठीक है, अगर हम लोग लूज कर रहे हैं या फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, देन the bond or the chemical bond that is formed is known as ionic bond या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अगर हम लोग शेयर कर रहे इलेक्ट्रॉन, देन इट इज ऑफ टू टाइप्स: equal sharing of electrons, equal sharing by both atoms, that is the covalent bond। covalent bond। ठीक है, and contribution of electron pair from one atom
and sharing between the two. अगर ऐसा हो रहा है कि कोई एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दोनों के बीच में शेयर हो रहा है, then the bond that is Coordinate. found is coordinate bond. ठीक है. In this chapter we will only talk about ionic bond and covalent bond. We will not talk about coordinate bond because coordinate bond के लिए तुम लोग का एक अलग से चैप्टर है which is known as coordinate chemistry जो तुम लोग का क्लास 12th में है. ठीक है. एक पूरा चैप्टर है खाली कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे. तो अभी इसीलिए वी विल नॉट टॉक मच अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड. वी विल फोकस ओनली ऑन आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. यहाँ तक किसी को दिक्कत है? एनीबडी? नहीं सर। नहीं सर। किसी को ऐसा लग रहा है कि सर बहुत तेज जा रहे हैं? बता दो. नहीं सर। किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है तो बता देना. ठीक है. यहाँ तक तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. हाँ सर। ओके. सो इसके बाद वी विल स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज आयनिक बॉन्ड. ओके. सो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक. कलर चेंज करते हैं. ओके. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. तो पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं. इट्स बेसिकली अ केमिकल बॉन्ड formed between two atoms formed between two atoms where there is transfer of electrons, transfer of one or more electrons, one or more electrons from electropositive atom to an electronegative atom. So chemical bond formed between two atoms where there is transfer of one or more electrons from electropositive atom to an electronegative atom is called an electrovalent bond. Is called electrovalent bond. बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन है. ठीक है. सो बेसिकली क्या हो रहा है, देयर आर टू एटम्स. वन ऑफ द एटम्स इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज एन एटम विच हैज अ टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स. है ना? अरे यार छोड़ो इसको. काफी चार्ज. हाँ. तो electropositive atom is an atom which has a tendency to give electron. Electronegative atom is an atom which has a tendency to accept electron. ठीक है. जैसे सोडियम हो गया. सोडियम के पास क्या है? आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. यस और नो? है ना? So sodium has a tendency of what? Sodium has a tendency to give that electron. अगर वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 8. है ना? नोबल गैस हो जाएगा. So that is why sodium is a electropositive atom. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेट से क्लोरीन ले लो. क्लोरीन का क्या है? टू क्लोरीन ना 287.
ठीक है. सो क्लोरीन इज 287. सो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में उसका 7 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो वो क्या चाहेगा, उसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा देन इट विल अटेन द ऑक्टेट और अटेन द नोबल गैस. ठीक है. सो देन इट वी कॉल दैट एटम एज एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम. क्यों? बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम किसको बोलते हैं? एटम विच हैज अ टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसको बोलते हैं? एटम विच हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है अपने तरफ, जो इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो. समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ यस. सर। तो ऑक्सीजन क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? क्या लग रहा है? नेगेटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. क्यों? कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए लेगा इलेक्ट्रॉन। हाँ, क्योंकि उसका आउटर में जो है 2 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर वो ले लेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ने से बेटर है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा. सो ऑब्वियसली इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इट विल फॉर्म ऑक्टेट. तो दैट इज व्हाई इट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है. ओके. ओके. ठीक है. अब कौन सा फोर्स काम करता है इन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड में? द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between cation and anion. Electrostatic attraction between cation and anion form the ionic bond. ठीक है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, क्योंकि जब भी तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे, कोई एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जो दे रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो एक कैटायन बन जाएगा, एक एनायन बन जाएगा. कैटायन एनायन दे आर like opposite charges, so obviously they will attract each other. This attraction in the form of electrostatic force of attraction क्या करता है, इन दोनों आयंस को एक साथ जोड़ के रखता है. एंड इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. ठीक है. यस. नाउ देयर आर सम पॉइंट्स दैट शुड बी नोटेड. पहला, ऑल आयनिक bonds are polar. पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, वी विल टॉक अबाउट लेटर ऑन. ठीक है. अभी बस जान लो, या फिर लिख रहे हो तो लिख लो. सो ऑल आयनिक बॉन्ड्स आर पोलर. दूसरा, ionic bonds are not formed between two similar atoms. कोई दो सेम एटम के बीच में आयनिक बॉन्ड कभी नहीं बनेगा. तीसरा, वन एटम, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, वन एटम should have tendency to lose electrons. Other atom should have tendency to gain electrons. ये होना चाहिए. ठीक है. दोनों एटम अगर ऐसा हो गया, सपोज करो ऑक्सीजन और क्लोरीन को ले लोगे, तो दोनों क्या आयनिक बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकते, क्योंकि ऑक्सीजन का भी टेंडेंसी है गेन इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन का भी टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन. तो कभी भी तुम्हारा नहीं होगा, दे विल नॉट फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड. ठीक है. आयनिक बॉन्ड बनने के लिए द बोथ ऑफ देम, बोथ द एटम्स should have
डिफरेंट टेंडेंसीज, ठीक है। एक का टेंडेंसी होना चाहिए इलेक्ट्रॉन छोड़ने का, दूसरे का टेंडेंसी होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, ठीक है। नंबर 4, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। नंबर 5, लास्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट is equals to number of electron gained, ठीक है, in the ionic bond। ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एटम का टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन लेने का तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और दूसरे एटम का टेंडेंसी है 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने का तो वो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि तो फिर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, है ना। सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट is always equal to the total number of electrons gained in an ionic bond, ठीक है। एग्जाम्पल्स, आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल भर भर के, KCl, ठीक है, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, ठीक है। तो एक एटम का टेंडेंसी है टू गिव इलेक्ट्रॉन और टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरे एटम का टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑल ऑफ देम हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सबका क्लियर है? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कुछ कंडीशंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, वही रिपीट होगा। सो छोड़ो, कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहला, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वन एटम हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2 और 3, इन तीनों में होगा, 1 या होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा, 1, 2 और 3, ठीक है। दैट एटम विल फॉर्म द कैटायन, दैट एटम विल फॉर्म द कैटायन, ठीक है। दे आर यूजुअली द metals, they are usually the metals। other atom, the other atom has valence electrons 5, 6 or 7, it will form the anion or accept electron, they are usually the non-metals, they are usually the non-metals, ठीक है। सो एक एक होगा जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, so it should have very less amount of electrons in the outermost shell, 1, 2, 3 ऐसा। एक एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो उसके आउटरमोस्ट शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सो 5, 6, 7, 8 तो नहीं होगा, क्योंकि 8 अगर होगा तो वो तो स्टेबल ऑलरेडी हो चुका है, तो वो क्यों रिएक्ट करेगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। दूसरा पॉइंट, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या होता है?
At least इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग ई एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ई एन। एट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ टू और मोर, ठीक है, टू और मोर is required, is required for ionic bond formation, for ionic bond formation, ठीक है। एटलीस्ट दो या फिर दो से ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है। सो हायर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, stronger is the bond formed, stronger is the bond formed, stronger is the bond formed। अच्छा, तुम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है पता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ये शायद मैं बताया हूँ तुम लोग को। हम्म, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? बताया था नहीं बताया था? कुछ बताओ तुम लोग। नहीं यार सर, नहीं बताया था शायद। नहीं बताया था? नहीं sir। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? किसी को पता है व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आगे चल के फिर से हम लोग पढ़ेंगे, बट हम बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी of an atom, tendency of an atom to attract electrons, to attract electrons, to attract electrons towards itself, towards itself in a chemical bond, in a chemical bond, ठीक है। जो कोई भी बॉन्ड बना है, लेट्स से हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना है, HCl, तो HCl बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है बीच में, है ना। तो वो दो इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में नहीं रहता है, वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा शिफ्ट कर जाता है। किसके तरफ? क्लोरीन के तरफ। वाई? बिकॉज क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है। सो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया? ये सुनो, यस। ठीक है। कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज मैं बता देता हूँ। जरूरत नहीं है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, फिर से इन डिटेल। अभी जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है, ठीक है। मैक्सिमम है फ्लोरीन का। कितना है? 4, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम। बाकी सबका, सब एलिमेंट्स का 4 से कम है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पूरे पीरियोडिक टेबल में पूछा जाता है कि विच एटम हैज द मोस्ट, और विच एलिमेंट हैज द विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल, तो फ्लोरीन, ठीक है। यूजुअली केमिकल बॉन्डिंग से पहले पीरियोडिसिटी पढ़ाया जाता है, या फिर पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है ना तुम लोग का, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी है ना, तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑल दोस थिंग, ठीक है। लेकिन ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट, तो पहला पॉइंट हो गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा पॉइंट हो गया डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड पॉइंट
overall decrease in energy. Again, overall decrease in energy. ठीक है, overall decrease in energy. So what are the energy changes while formation of an ionic bond? पहले हम लोग वो देखते हैं. ठीक है, तो energy changes, energy changes in an ionic bond. किसी भी ionic bond बनने के लिए there are some energy changes that are required. ठीक है, पहला ionization energy. Ionization energy क्या होता है? It converts the neutral atom to cation. ठीक है, कैटायन बनाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है, कोई भी एलिमेंट है, सपोज करो कि ए, उसको तुम दोगे आयनाइजेशन एनर्जी, तब जाके वो बनेगा. आयनाइजेशन एनर्जी पढ़े हो, याद है कि नहीं याद है? हाँ सर, याद है सर। ओके, वो ग्राउंड बेसिक. स्टेट से हाँ, बिना इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के। निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है ना, हाँ तो इलेक्ट्रॉन को हाँ निकालोगे तब जाके कैटायन बनेगा. सो दैट्स द आयनाइजेशन एनर्जी. सो किसी भी एलिमेंट को अगर आयनाइजेशन एनर्जी दोगे तो वो कैटायन बनेगा. ठीक है, यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लिख रहा हूँ. ठीक है, तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं, नॉट नेसेसरी. अब तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? क्या लग रहा है? ज़्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एक एनर्जी जो हम लोग दे रहे बाहर से, है ना. तो तुम क्या कोशिश, क्या चाहिए होगा, मतलब आइडियल क्या होना चाहिए कि कम एनर्जी. अगर हम लोग कम कम। एनर्जी देंगे, कम एनर्जी देने से अगर हो जाएगा तो बेटर है ना, क्योंकि ये हम लोग बाहर से दे रहे एनर्जी, है ना. हाँ। जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी होगा उतना इजीली कैटायन बनेगा, और जितना इजीली कैटायन बनेगा उतना इजीली आयनिक बॉन्ड बनेगा. यस और नो? यस सर। ठीक है, तो लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी, lower the ionization energy, easier is formation of cation. Formation of cation. ठीक है, तो hence one atom should have low ionization energy. ये हो गया पहला पॉइंट. दूसरा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. Electron affinity is the energy released when electron is added to an electronegative atom. ठीक है, सपोज करो कि बी और एक एटम है, इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये क्या बन रहा है? बी माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी जो मैं राइट साइड लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये एनर्जी रिलीज हो रहा है ना. आयनाइजेशन एनर्जी के टाइम हम लोग लेफ्ट साइड में लिखे थे, बिकॉज ये एनर्जी हम लोग को देना पड़ रहा है. डिफरेंस समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, अब बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए?
बॉन्ड फॉर्म करने के लिए? ये तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा ही होगा ना। ये ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जितना ज़्यादा रिलीज करोगे मतलब एनर्जी सिस्टम का कम हो रहा है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है ना? यस और नो? ठीक है, तुम यस। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए, सो हायर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, easier is bond formation. ठीक है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम should have higher electron affinity. यहाँ तक क्लियर है? Yes or no? हाँ। Third point is your lattice energy. ये क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी तो हम लोग समझ गए। सो व्हाट इज लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी इज बेसिकली क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल में, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन क्रिस्टल्स मोस्टली, तो किसी भी क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल में, एक कैटायन के चारों तरफ बहुत सारे एनायंस रहते हैं। सिमिलरली एक एनायन के चारों तरफ बहुत सारे कैटायन रहते हैं। लाइक अगर तुम लोग NaCl का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो सोडियम ऐसा है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, और फिर ये क्लोरीन, यहाँ पे फिर एक सोडियम है, यहाँ पे फिर उसके साथ क्लोरीन है, इसके साथ क्लोरीन है, यहाँ पे एक सोडियम है, ठीक है, ऐसे अटैच्ड है, लाइक दिस एंड सो ऑन। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला उसका NaCl ही है, लेकिन वो जब सॉलिड में है देन इट हैज गॉट अ स्ट्रक्चर, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, कुछ ऐसा लाइक दिस है ना, ठीक, ऑल्टरनेटिंग सोडियम, तो एक सोडियम के चारों तरफ 6 क्लोरीन होता है, ठीक है, और एक क्लोरीन के चारों तरफ फिर 6 सोडियम होता है, लाइक दिस। तो क्या होता है कि मतलब एक सोडियम के चारों तरफ 6 क्लोरीन और एक क्लोरीन के चारों तरफ 6 सोडियम, तो बेसिकली फॉर्मूला जो है सेम रहता है, NaCl ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर या फिर फ्रेमवर्क बना है, इसको बनने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, है ना? इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस, और इसको फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। सो हम लोग बोल सकते हैं कि कैटायंस आर सराउंडेड बाय एनायंस and vice versa to form a crystal lattice, with alternating uh, with alternating cations and anions, ठीक है, with alternating cations and anions, this crystal lattice जो है, this crystal lattice decreases potential energy and increases stability, इसीलिए बनता है, नहीं तो क्यों बनना चाहेगा? ठीक है, it decreases potential energy and increases stability, ठीक है। So what is lattice energy? What is lattice energy? It is the energy released, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, इसका मतलब क्या, एनर्जी जो है रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, so एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस।
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? यस हाँ सर। अब तो ये लैटिस एनर्जी ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ये जो लैटिस एनर्जी, ज्यादा। ये भी ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। सही है। ठीक है, तो ये भी ज्यादा होना चाहिए। सो हायर द लैटिस एनर्जी, एल ई लिख रहे हैं हम, ठीक है। हायर द लैटिस एनर्जी, easier इज द बॉन्ड फॉर्मेशन। सो तुम तीन चीजें देखे हो अभी तक, ठीक है। एक है आयनाइजेशन एनर्जी, एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक है लैटिस एनर्जी। तो हम लोग ये ऐसा लिख सकते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी plus lattice energy is greater than ionization energy, then bond formation takes place। क्या हम लोग लिख सकते हैं? हाँ सर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एनर्जी रिलीज हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लैटिस एनर्जी क्या है? जो एनर्जी रिलीज हो रहा है जब लैटिस बन रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी जो देना पड़ेगा, ठीक है, जो एनर्जी देना पड़ेगा टू फॉर्म अ कैटायन, ठीक है। तो एनर्जी दे रहे हैं हम लोग सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिलीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है टोटल, ये जब ज्यादा होगा तभी जाके स्टेबल बनेगा, है ना, सिस्टम ज्यादा स्टेबल बनेगा, और तभी जाके बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन नहीं होगा देन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ रहे हो यहाँ तक? हाँ सर। हाँ यहाँ सर। तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग लैटिस एनर्जी पे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओके सर। लैटिस एनर्जी हाँ पे सर। ही कंटिन्यू करेंगे। इसको हम लोग